لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کی بریائی صلی اللہ علیہ مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بل خطا سے ناامید ہے۔ درود و سلام رحمت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و برہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیو، اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے ہم نے گزشتہ جمعے سے آج کے جمعے تک ایک بہترین صحت کے ساتھ زندگی کو گزارا۔ ان 8 دنوں یا 7 دنوں میں ہم نے توحید کے بول بانے کے لیے کیا عمل کیا، اس کا محاسبہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اسی ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے توحید کی برکت۔ آئیے انشاءاللہ العزیز آج کے اس نشست میں اور آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ توحید کے لیے میں اور آپ کیا کر گزر رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسانیت کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوا، لوگ بکھرنے لگے، اللہ سے منحرف ہونے لگے، اللہ کے قانون کو پیٹ پیچھے ڈالنے لگے اور اپنی من مانی خواہشوں کی پیروی جب کرنے لگے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس کائنات کے اندر ایک ایک نبی اور رسول کو دنیا میں بھیجتا تھا۔ اور ذرا زیادہ بات کو طول نہ لے جاتے ہوئے برکت کیا ہے آخر، اس کے بعد پھر میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ کیا عمل میرے اندر ہے یا نہیں، کیا میں یہ کر رہا ہوں یا نہیں، یا صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر اپنی جھولیوں کو بھر کر اپنی زندگی کو مست مگن گزار کر اس دنیا سے میں کوچ تو نہیں کر رہا۔ یہ محاسبہ کرنا ضروری ہے عزیزان محترم۔ آؤ ذرا ہلکی ہلکی موٹی موٹی باتوں کو ذرا محاسبہ کر کے دیکھتے چلے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں؟ کیا مجھے تھی؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنے مرے ہوئے بزرگوں کو اپنا ولی اور کارساز بنا لیا تھا۔ ان کی شکل کے بتوں کو بنا کر اپنے گھروں میں رکھ کر لوگ ان سے امیدیں جڑا کرتے تھے اور ان سے یہ بات کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نیک ولی اور بزرگ ہیں، آپ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، ہماری بات اس تک پہنچنا محال ہے۔ یہ جب چیز پیدا ہوئی اور اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے بتوں کی پرستی شروع کر دی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی سرزمین سے، اسی خاندان سے ایک شخص نوح علیہ السلام کو اٹھایا اور بھاری بھرکم بوجھ اور ذمہ داری دی اور کہا کہ ایک اللہ کی طرف بلائیے، نوح ڈریے مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قوم نے کیا کیا؟ بدتمیزی کی، پتھر مارے، پیٹ پھوڑی، کھانا بند کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ کس وجہ سے عزیزان محترم؟ ایک وقت کا نبی جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، جس کو اللہ نے نامزد کیا ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارا نبی ہے، اس کو نقصان اگر پہنچاؤ گے تو پھر یاد رکھنا تمہاری اینٹ سے اینٹ بداجی جائے گی۔ ہوا کیا؟ نوح علیہ السلام اپنا پیغام پہنچا رہے تھے، قوم نے مانا نہیں۔ مختصر بات یہ کہ قوم آپے سے باہر ہوئی، 950 برس کی تبلیغ میں 120 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر اللہ رب العزت نے توحید کی برکت کا وہ ڈنکا اس سرزمین پر بجایا کہ طوفان نوح، تاریخ شاہد ہے کہ طوفان آیا، لوگ ڈوبنے لگے،
कश्ती में सवार ईमान वाले बचने लगे और अल्लाह ने इसी तौहीद की बरकत से उन 120 ईमान वालों को बचा लिया और बाकी के शहर और मुल्क को अल्लाह ने ऐसा गर्क कर दिया कि तारीख में उनकी नजर नहीं मिलती। पता ये चला कि जो आदमी तौहीद पर होता है उसकी जिम्मेदारी अल्लाह हर शय की ले लेता है। नौकरी की जिम्मेदारी उसकी, कमाई की जिम्मेदारी उसकी, शिफा की जिम्मेदारी उसकी, रिश्तों की जिम्मेदारी उसकी, हर वो शय की जिम्मेदारी अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू अपने जिम्मन में लेता है ता वक्त के वो तौहीद पर अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करे। आज हमारे तवक्कुल के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। हम कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ करने वाला है, फिर घर में बैठ के सोचते हैं, मशवरा करते हैं कि काम किया जाए तो क्या होगा। हम मार खा गए यहाँ पर। पहली बरकत इस सरजमीन में देखी तौहीद की, अल्लाह ने बचा लिया नूह को किश्ती के जरिए से और तूफान नूह में सारे खानदान वालों को भी गर्क करके रख दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। आओ दूसरी बरकत तौहीद की देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपना अपना मुहासिबा करें। दूसरी तौहीद की बरकत ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर उर में, जिनका बाप आजर नमरूद के दरबार का एक नामी गिरामी आदमी, इज्जतदार, मालदार, ताकतवर, मशवरे देने वाला, उन्हीं के घर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तौहीद परस्त को पैदा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर उर के अंदर अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ, तवानाई के साथ अल्लाह के घरों से तौहीद का पैगाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून का नारा बुलंद कर रहे थे। जहां बुत परस्ती थी, जहां दो दो चार चार हाथ वाले खुदाओं को बनाया जाता था, जहां मुश्किल कुशा एक अलग खुदा, ये महीने का एक अलग खुदा, एक बड़े जो ना बुत गदे के अंदर बहुत सारे खुदाओं को रखकर लोगों को मनवाया जाता था। बड़े बड़े देव हैकल जो ना बुतों को बनाकर ये बताया जाता था कि ताकतवर है, तुम्हें सब कुछ देने पर कादिर है। उसी मुल्क के अंदर, उसी शहर के अंदर, बुत परस्ती के शहर में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जिम्मेदारी दी और वो आजर के शहर में, आजर के मुल्क में अपने बाप की सारी जो तवानाई उस शहर पर लगे हुए थे, जो नमरूद का खास मशीर कहलाया जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया क्या? अपने बाप की ताईद नहीं की, अपने बाप से मसलहत नहीं की, अपने बाप से मुफाहिमत नहीं की, कोई तावील नहीं निकाली कि अब्बू आप अब्बू हैं लिहाजा कुछ दिन तक ये कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको मुखालिफत करूंगा। नहीं, अल्लाह का हुक्म मिला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत को बुलंद किया और अल्लाह के भरोसे सारे शहर उर के अंदर एक नारा बुलंद कर दिया और कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ये बुत, ये बनाए हुए मिट्टी गारे के, कच्ची मिट्टी और सूखी मिट्टी मिलाकर बनाए जाने वाले, ये दो दो चार चार हाथ वाले सोट वाले कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक अल्लाह के। सारा शहर उमड़ पड़ा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार से आर्डर आ गया। और करना इन बातों पे अज़ीज़ान मोहतरम, तौहीद परस्त मौजूद भी हो, बुत परस्ती भी चलती रहे, तौहीद परस्त मौजूद भी हो, दरगाहों का निजाम चलता रहे, तौहीद परस्त मौजूद भी हो, मुर्शद की जो है ना झोले में पैसे डाली जाती रहे, तौहीद परस्त मौजूद भी रहे, रंग बिरंगी की टोपियां पहनी जाती रहे, तौहीद परस्त मौजूद भी रहे, खुदाओं का इनकार किया जाता रहे, तौहीद परस्त मौजूद भी रहे, सहाबा को गालियां देने वाले सरजमीन पर जिंदा भी रहे। कौन सी तौहीद है ये जो मार नहीं खा सकते तुम? कौन सी तौहीद है ये भूखे नहीं रह सकते तुम? कौन सी तौहीद है ये परेशानी नहीं झेल सकते तुम? हर तौहीद परस्त को अल्लाह ने मुसीबतों में मुब्तला कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ये तौहीद का नारा बुलंद करते हैं तो नमरूद के दरबार से आर्डर आता है कि इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। तौहीद की बरकत इसको लेके जाइए इंशाअल्लाह। अपने अपने मैं और आप अपने अपने तौहीद को दुरुस्त करें। तौहीद पे हमारी बड़ी कमजोरियां है। मुख्तसर बात ये इब्राहिम सलाम के लिए आग जलाई गई और इब्राहिम सलाम को आग में डाला जाने वाला है। फरिश्ते ने आकर कहा अल्लाह ने भेजा है, क्या कहते हो इब्राहिम, कुछ मदद कर दूं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे इब्राहिम ने तौहीद का मुनारा बुलंद किया और कहा फरिश्ते वापिस जा, तेरी जरूरत नहीं है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए कारसाज है, याद से मुझे बचाएगा मेरा अल्लाह। सारी मंजर देखे, चश्मे फलक में देखा, आसमान के फरिश्तों ने देखा, चेहरे उनके लोगों ने देखा कि इब्राहिम को तो आग में डाला जा रहा है और अल्लाह ने आग से कहा कि यार इब्राहिम आ रहा है, तौहीद वाला है ये,
हमसे मांगने वाला है, हमसे हमारे लिए हमारे अलावा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाता, सर नहीं झुकाता। हमारे लिए तो सारे खानदान और शहर और मुल्क से लड़ चुका है, भिड़ चुका है। ये अब तेरा काम है ऑर्डर देते हैं, हमने तुझको पैदा किया है, हमने तकलीफ की है आज, लेकिन इब्राहिम को बचाना भी तेरी जिम्मेदारी है। हम हुक्म देते हैं कि सलामती वाली आग बन जा। चश्मे फलक ने मंजर देखा, कुरान ने इस मंजर को खींच के बताया और कहा कि इब्राहिम के लिए आग ऐसी कर दी गई जैसा एक चमन गुलशन है, फूलों का ठंडा, उसमें से इब्राहिम चलते हुए निकल रहे। अल्लाहु अकबर, ये है तौहीद की बरकत। अजीजान मोहतरम, आओ आगे बढ़ते हैं वक्त की तंगी के हिसाब से, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, नाम लेना आसान है, दरूद पढ़ लेना आसान है, आपकी सीरत मुबारका को हमारी जिंदगियों में लाना उतना ही मुश्किल है। जबकि अल्लाह ने ऑर्डर दिया और कहा, हुक्म है ये, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने अपनी मर्जी के मुताबिक नबी की जिंदगी को तराश लिया, हमने अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन गए। वो जिंदगी जो अल्लाह ने नबी को दी थी, वो जिंदगी आज गुजार सकते हो? तो तमाशा कर रहे हो। तौहीद मौजूद है, परेशानियां, मुसलमान तबाह, मुआशरा तबाह, लोग जहन्नुम में जा रहे हैं, और मैं होकर कह रहा हूं कि नहीं नहीं भाई, हम सब नहीं करते, मैं तौहीद परस्त हूं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से इकरमा बिन अबू जहल तक के जितने सहाबा इकराम उस सरजमीन पर उस वक्त में गुजरे हैं ना, कौन से सहाबी थे जिन्होंने ये कह के माशरे से नजर को फेर लिया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तौहीद परस्त हूं? लाके बता देना इंशाअल्लाह। आओ तौहीद की बरकत देखते हैं। मक्के की सरजमीन पर जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, बुनैया बनु उमैया का गुलाम, हबशा का रहने वाला, काला कलो का आदमी, जिसको बिलाल हबशी कहा जाता है, बिलाल इब्ने रिबा हबशी। अल्लाहु अकबर, पढ़ो कभी तारीख, पढ़ो कभी वाकया। उसके बाद फिर जो चुने हुए तुम्हारे दस्तरखान के खाने हो मेरा छोड़ के उठ जाएंगे तुम? ये जिस्म पर भारी भरकम पहनावा लिबास है ना, उतार के फेंक दोगे तुम? ये जो महलों में चाहते हैं ना हम अपने बिल्डिंगों के सामने, बिलाल की जिंदगी अगर पढ़ोगे तो ये तुम्हारे लिए हीज नजर आएगी, कचरा नजर आएगा, कोई नहीं। मक्के की सरजमीन पर बिलाल पनाह लिया हुआ है, बनु उमैया के बाद 2 वक्त की रोटी की गुलामी कर रहा है आदमी, कोई पुरसाने हाल नहीं। और जरा देखते हैं तौहीद की बरकत क्या है। अल्लाहु अकबर, सितम पर सितम ईमान लाने के बाद, वो सितम कि आज भी अरब के दरो दीवार से उसकी आवाज टकरा जाती है। वो तारीखी मुकामात आज तुम जाकर के कभी देखना, उमरा या हज के लिए जाओ तो, कि कहां कहां मेरे बिलाल को कैसी तकलीफें दी गई थी, कैसे कैसे मेरे बिलाल के मुंह से चीखें निकली थी, कैसा कैसा मेरा बिलाल गशी खाकर जमीन पर गिरा था। बाजरा क्या था आखिर, चाहिए क्या था बिलाल को? किसी की हुकूमत, जायदाद, माल, कुछ नहीं चाहिए था। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून के नारे पर आ गया था, अहदुन अहदुन का नारा बुलंद करके। तकलीफों को अपनी जिंदगी का एक महवर बना लिया था बिलाल ने। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो चुरके नहीं दिए गए थे, जो पहाड़ों पर डालकर घसीटा नहीं गया था, जो सीने पर सिर रखकर रेत पर घसीटा नहीं गया था, वो लोहे की ज़रा पहनाकर सारा दिन धूप में रखकर अचानक जो है ना वो लोहे के लिबास को जब खींचा जाता तो मेरे बिलाल की चमड़ी उस लोहे के लिबास को लगकर बाहर आ जाती, चीख निकल जाती है। तौहीद किस जीवन में? एक अल्लाह को मानने के लिए। गौर करना जीजान बेहतर, मेरे जीज नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्ग, मेरे जिम्मेदारों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर, और फिर जन्नत में दाखिले का मौका आया। अल्लाहु अकबर, ये है तौहीद की बरकत। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इतराते हैं हम, फख्र करते हैं, तकब्बुर करते हैं, अपने आप से बाहर होते हैं, हमको पता ही नहीं कि तौहीद असल में है क्या, तौहीद के लाने से क्या निजाम बदल सकते हैं हम, और तौहीद की ताकत क्या होती है, उसका मुजाहरा आज तक मैं और आपने नहीं किया। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला मक्के की सरजमीन में चल रहे, फिर रहे, नबी को मेराज हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर है और जन्नत में दाखिला ले रहे हैं। जिब्राइल से अल्लाह के नबी ने सवाल किया, जिब्राइल जन्नत तो खाली है, तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं, ये खदमुल की आवाज किसकी आ रही है? कौन है जो हमारे आगे आगे चल रहा है?
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी और कहा, या रसूल अल्लाह, आपका बिलाल जमीन पर चलता है, अल्लाह उसके कदमों की आवाज को जन्नत में सुनाता है। कौन है भाई? मार खाइए कभी तौहीद के लिए? इंतजाम खेला है? बीवियों में इंतजाम, बच्चियों पर इंतजाम कभी आया है? कभी 2 वक्त की रोटी छोड़ी है? कभी जेल की सोबतें बर्दाश्त की है? कभी जो जुल्म बर्बरियत का तुम पर कोई असर हुआ है? कुछ नहीं, सब कुछ रेडी रहना भाई। बच्चा डॉक्टर करना, बच्ची एमबीबीएस करना, घर अच्छा रहना, 4 फ्लैट रहना, 2 लाख रुपए किराया आना, गाड़ी हर वक्त नई नई एसी की रहना, खाने के लिए अच्छा रहना, एक सालन दूसरी मर्तबा नहीं आना, बीवी खूबसूरत रहना, अच्छे जेवरात वाली रहना, खानदान वाले जो गरीब रह तो रहे। मैं तौहीद परस्त हूं भाई, मेरा तौहीद परस्त हूं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तौहीद की बरकत तो यह थी कि जमीन पर राज चल रहा है, जन्नत में उसके कदमों की आवाज को सुना रहा है अल्लाह। कभी सोचा है ये मनोहर जिंदगी को लेकर, ये धक्यानी से सोच को लेकर कि कितने परसेंट का तौहीद परस्त हूं मैं आखिर? 100% हो तौहीद परस्त, जबकि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने वाज़ेह और खुली तौर पर कहा सूरह बकरा की आयत नंबर 208 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे 100% दाखिल हो जाओ और फिर शैतान की इत्तिबा मत करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कहाँ है तौहीद की बरकत? किससे पूछा जाए तौहीद की बरकत? अल्लाहु अकबर। तौहीद की बरकत अगर देखना हो तो औरतें भी सुनना, और औरतों तक ये पैगाम मर्द आदमी ले जाना और पहुंचाना और बताना कि तौहीद की बरकत क्या होती है। मक्के पर उंगलियों में गिने जाने वाले मुसलमान और ज्यादातर लोग कमजोर नहीं, गुर्बत के मारे हुए। अल्लाह अकबर। उन लोगों ने इस्लाम के परचम को बुलंद किया, उन लोगों ने इस्लाम को थामा, उन लोगों ने नबी का साथ दिया, हर मुश्किल वक्त में नबी के सुब्ह है सामने सीना सुपुर्द होते रहे, आगे नहीं मैदान छोड़ करके ठहरे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में से बीबी सुमैया का नाम आता है। अल्लाह अकबर। ज़ईफ खातून, बुजुर्ग, 70 साल की, अल्लाह, चलने की ताकत नहीं, हाथों पैरों में दम नहीं, लेकिन तौहीद को ऐसे कबूल किया कि बनो उमैया के खैमों में आग लग गई। अबू जहल बेचैन हुआ, तमाम के तमाम कुंडे उमड़ पड़े और सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आकर के शहीद कर दिया गया। पहली इस्लाम की शहीद खातून, और जो शहीद होता है बगैर हिसाब किताब के जन्नत देख लेता है। यही तौहीद थी। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शहादत को कबूल किया, लेकिन अपने आप को जो ना माहौल और हालात के तय ढालने का जो है कभी आमादा नहीं हुए। कहाँ है तौहीद? कौन सी तौहीद की बात करूं मैं आपसे? किस तौहीद की बात करूं मैं आपसे? आओ, एक वाक़या मिलता है, एक नौजवानों के ताल्लुक से है। किसी मुल्क के अंदर एक बादशाह, वो बादशाह जो है जिंदगी गुजर रही है, शब रोज हो रहे हैं, उसके पास एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो जादूगर बादशाह की मदद किया करता था कि अब रियासत में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, दखियानी सी बातें, ख्याली पुलाव। बादशाह जो जादूगर की बात पर यकीन करके हो जाता, लेकिन जब जादूगर ज़ईफ होने लगा, तौहीद की बरकत और करना चीज़ाने मुहतरम, सुभान अल्लाह। दिन में एक मर्तबा मैं तौहीद परत, माशरे में जो है ना गंदगी फैल रही है, लोग उरिया लिबास पहन के अपने बेटी बहू को निकाल रहे हैं, शादी ब्याह में जो है ना रिकॉर्डिंग चल रही है, बड़े बड़े शादी खानों में शादियां हो रही है, जोड़े की रकम ली जा रही है, बहुओं को सताया जा रहा है, दामादों को जो है ना गुलाम बनाया जा रहा है, सूद का कारोबार आम चल रहा है, शराब नाम बदल के पी जा रही है, चाकूदरी चल रही है, कत्ल आम हो चुका है, बेपर्दा औरतें घूम रही है, इस्लाम के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो मजरूह किया जा रहा है, सहाबा की सीरत को गालियां दी जा रही हैं आपके शहर में 40 दिन तक, फिर भी कह रहे हैं आप मैं तौहीद परस्त हूं। आओ, वो तौहीद परस्त कैसा था जिसकी बरकत थी? बादशाह के बाद जादूगर आया, कहा कि भाई देखो मैं अब ज़ईफ हो रहा हूं, मेरी उम्र खत्म हो रही है, मैं नहीं कर सकता आपका काम कुछ भी, शहर से ऐसा दानिशमंद और खूबसूरत और ताकतवर और ज़हीन लड़का ढूंढो जिसको मैं सारा इल्म उसके पास ट्रांसफर कर दूं, दे दूं उसे। बादशाह तजवीज को कबूल कर लिया और फिर लड़के को तजवीज किया गया, खून होनहार, खूबसूरत और इंटेलिजेंट, बेहतरीन सवालों का जवाब देने वाला, बहुत खूबसूरत ज़हीनी ताकत रखने वाले नौजवान को तैयार किया गया, बादशाह की खिदमत में दे दिया गया। रोज वो नौजवान निकलता, बादशाह के पास, वो जादूगर के पास जाता और फिर वहां से जो भी बातें वो सीखता, आता जाता।
एक मर्तबा एक अब यहाँ है तौहीद का मामला। अल्लाह अकबर। मेरा दोस्त है, दाढ़ी मुंडा है, मगर मेरा दोस्त है ना, मैं नहीं छोड़ सकता उसको। मैं ससुरे साहब है मेरी बीवी के बाप है, लेकिन क्या करूं, उनको आदत है गुटखा खाने की, दाढ़ी मोड़ने की, बेनमाजी रहने की। अब ससुरे है ना, मैं इज्जत कर लूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। तौहीद को पहचाना ही नहीं आपने। आओ देखते हैं क्या है उधर आगे। उस बच्चे से एक नेक आदमी की मुलाकात हुई, राहिब की। वो राहिब पूछने लगा, मैं तुम्हें देखता हूँ रोज इधर से आते जाते हो, बाबा माजरा क्या है? वो नौजवान कहानी बता दिया कि मैं एक जादूगर के पास जाता हूँ और वहां पे मेरे इल्म दिया जा रहा है, मैं बादशाह की खिदमत में लगने वाला हूँ। वो तौहीद परस्त आदमी ने उसके जहन में ऐसी बेहतरीन बात अल्लाह के ताल्लुक से बिठा दी और कहा, ये सब बेकार की बातें बेटा, बस सीखो, रोजाना वह जाने का बहाना करना, मेरे पास आओ, अच्छी तालीम तुम्हें मैं दूंगा। वो लड़का जादूगर के पास जाने से रुक गया और वो राहिब के पास, वो नेक आदमी के पास बैठने लगा, अच्छी अच्छी बातें लेने लगा, तौहीद की तरफ आने लगा, जहन बनने लगा। जब जहन बना, एक मर्तबा वो लड़का रास्ते से गुजर रहा था, एक बड़ा सांप रास्ता रोक लिया, लोग इधर किधर हो गए। लड़के के जहन के अंदर सवाल आया, पूछने लगा माजरा क्या है? अब देखते क्या है कि जादूगर का रब सही है या ये राहिब का रब सही है, देखते हैं अभी। मेरे को तो ये जो आलिम मिला है, जो आदमी मिला है राहिब, पूरी बातें मुझे बता, मुझे समझ में आ रही है। वो लड़का हाथ में कंकरियों को उठाया और बिस्मिल्लाह कहकर उस अजदह के तरफ जब मारता है तो चश्मे फलक ने और लोगों ने इस मंजर को देखा कि वो अजदहा दुम दबाकर रास्ता छोड़ देता है और लोग कहते हैं कि तुम्हारा क्या कलाम है वो बताओ, क्या सीखा तुमने, ऐसी क्या बात थी कि जहाँ रास्ता अजदह ने छोड़ करके चला गया। वो लड़का उन लोगों को भी तौहीद की दावत देता है, कहता है कि करने वाली जात एक अल्लाह की है, उनके अलावा कोई नहीं है, तमाम की तमाम इख्तियारात उसके पास, हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। लोग बात के मानने पे आए, बादशाह के पास बात मालूम हुई, यहाँ से है तौहीद की बरकत। बात मालूम हुई बादशाह के पास और बादशाह ने कहा बुलाओ लड़के को। पूछा क्या है? उस लड़के ने बादशाह की आंख में आंख डालकर कहा, तुम्हारा रब गलत है जिसको तुम मानना चाहते हो, मेरा रब सच्चा है जिसको मैं मानता हूँ, अकेला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला। बादशाह गुस्सा आया, लोग जमा किया और कहा, इसे ले जाओ पहाड़ की चोटी से ढकल दो, मार दो इसे। हमारी उठे, बच्चे को उठाया, पहाड़ की आखिरी चोटी पर चले गए और वहां से बच्चे को जब ढकल रहे थे, बच्चे ने अपने रब को पुकार कर कहा कि ऐ खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, तेरा मानने वाला हूं, क्या मुझसे नुकसान हो सकता है? लोगों ने ढका और वापिस आ गए। दूसरे दिन फिर शहर में मौजूद है बच्चा, फिर अपने काम पर मौजूद है। बादशाह के बाद बात पहुंची, बादशाह ने कहा हवाले से कि तुमने गलत काम किया, तुमने नहीं माना होगा उसे। लोगों ने कहा हमने ढकल कर ये चोटी से, बच्चा बच गया है, समंदर में ले जाओ इसे, समंदर में डाल दो इसे। भी समंदर में ले जाया गया, डाल दिया गया, लोग वापिस आ गए और समझने लगे कि बच्चा मर जाएगा। उस बच्चे ने अपने रब को पुकारा और अल्लाह ने समंदर की गहराइयों में से रात के अंधेरे और दिन के उजाले में से पानी के अंधेरे से निकालकर जिंदा फिर शहर में पहुंचा दिया। फिर बच्चा आ गया। बादशाह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका माजरा कुछ और है, देखना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अरे हम तौहीद पर इतना मजबूर कर दो सबको कि हमसे सवाल करने पे आ जाए लोग कि भाई आखिर चाहते क्या हो तुम, आखिर माजरा क्या है? ये सबको अगर छोड़ देंगे तो एक कैसे सच्चा हो सकता है? हमने बताने से खातिर है। उस बच्चे ने बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम किया और बादशाह से कहा, मुझे मारना ही चाहते हो ना बाबा, तो एक काम करो, सारे शहर को एक मैदान में जमा करो, सारे शहर में एक मैदान में जमा करो लोगों को, और मुझे एक पेड़ से बांध दो ताकि मैं हिल ना सकूं, और एक तीर लो और अपनी कमान में लगा के ये कहकर वो तीर छोड़ना जो है हवा में, इसके बगैर मैं नहीं मर सकता। बादशाह ने कहा बताओ क्या कहना है? कहो कि ये बच्चे के रब के हुक्म से तीर मार रहा हूं। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इक़दाम किया, बादशाह ने तजवीज़ कबूल की, सारा शहर मैदान में जमा है और बच्चा खड़ा हुआ नहीं, ताकेला तौहीद पर है, सारा शहर मंजर देख रहा है। बादशाह तीर उठाया और तीर को सनसनाती आवाज में कहा कि ये बच्चे के रब के हुक्म से मैं जो है ना तीर छोड़ रहा हूँ। तीर निकला और बच्चे के नरखरे में आके लगा, बच्चा 2 मिनट के अंदर शहीद हो गया। लेकिन जितने लोग जमा थे शहर के, उन्होंने ये कहा बादशाह तो अब तक हमें बेवकूफ बना रहा था, ये हमारा खुदा, ये हमारा खुदा, ये हमारा खुदा। किसके खुदा से कुछ नहीं हुआ, ये बच्चे का जो खुदा है वो सच्चा है। सारे शहर में एक ही वक्त में आवाज बुलंद करके कहा हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह।
कितनों को मुसलमान बनाया भाई? हाँ, मुसलमान को काफिर कहते हुए नहीं शर्माते, तो हिंदू को क्या मुसलमान बनाएंगे आप? जिम्मेदारी है आपकी। दुनिया का कोई कानून इस्लाम के कानून का ना रोक सकता है ना बैठ सकता है। दुनिया का कोई कानून ना इस्लाम की शरीयत के जो बने हुए लॉ है उसमें तब्दीली ला सकता है। जो ढकोसले हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए से आते हैं, वरना तब्दील अगर होना है अल्लाहु अकबर, तो फिर इस नारे को बुलंद जो है बदलना पड़ेगा। सबसे पहले इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। चैलेंज कर दिया दुनिया को कुरान में, और अल्लाह ने चैलेंज करके मुसलमानों के अंदर हिम्मत और इस्तिक़लाल पैदा करके कहा यह कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है, ऐसे कोई मिटने की ताकत नहीं रख सकता, और ये अल्लाह इसकी कुरान की हिफाजत करने वाला है। पूरी शरीयत का छुपी हुई भाई कुरान में ना। आज तो बच्चा पैदा होते ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाते हैं बच्चे को। आज बच्चा बड़ा होते ही जरा सा बड़ा हुआ तो खाना नहीं खाना गेम लगा के दे देते हैं। आज बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अच्छा कोई इंग्लिश मीडियम देखिए उसको डालने की कोशिश करते हैं। तौहीद दी क्या आपने? तौहीद समझा क्या हमने? अल्लाह अकबर। दिल दुखता है अजीज़ान मोहतरम जब हालात देखते हैं, हकीकी बात तो यह है कि हमने ना सहाबा की जिंदगी को समझा, ना रसूलुल्लाह की जिंदगी को समझा, ना कुरान के वाकयात को समझा, नफ्स की समझा। नफ्स, मेरा नफ्स ये चाहता है मैं ये करूंगा, मेरा नफ्स ये बोलता है मैं ये बोलूंगा, मेरा नफ्स ये कहता है मैं ये देखूंगा, मेरा नफ्स ये होता है तो मैं ये करूंगा। हमारे किसके सुन रहे हैं? अपने नफ्स की सुन रहे हैं। वरना तौहीद परस्त मौजूद भी हो और अल्लाह की जात में शिर्क भी हो, मुमकिनात में से नहीं है अजीज़ान मुझे। पूछेगा अल्लाह, मुझसे भी पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, हर एक से सवाल करेगा जितने मुसलमान हैं। बिलखुसूस जो दावा ठोकते हैं कि मैं हदीस है या फिर अब तौहीद परस्त, हमसे तो और ज्यादा पूछने वाले, क्योंकि काम कर रहे नहीं। सारे का सारा दावत का काम ठप पड़ा हुआ है। मस्जिद नमाज के तक मौकूफ रह गई। कोई एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं, कोई एक दूसरे से मशवरा करने के लिए तैयार नहीं, किसी आलिम की सोहबत में बैठ के इल्म हासिल करने के लिए तैयार नहीं। किधर जिंदगी है अज़ीज़ान मोहतरम? फिर तौहीद फैले तो कैसे? हम कहते हैं कि उनका मामला है जी, हमको क्या करना है इससे? अस्तगफिरुल्लाह। यही बुराइयों को, मामलात को खत्म करने के लिए आपको आखिरी उम्मत बना के भेजा गया। सूरह इमरान कहता है 110 के मुताबिक जिम्मेदारी है तुम्हारी अच्छाई को कायम करना, बुराई को मिटाना, एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देना। दिन भर में 5 लोगों से मुलाकात होती है, तिजारत की बात होती है, लेन देन की बात होती है, परेशानी की बात होती है, खर्च की बात होती है, लोन की बात होती है, घर की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, प्लॉट की बात होती है। लेकिन अगर नहीं होती तो इस्लाम की बात नहीं होती। इस्लाम के क्या क्या उसूल छूट रहे हैं, कैसे कायम किया जाए, कैसे घर घर तक जो है ना कच्चे पक्के मकान तक इस्लाम दाखिल हो जाए, इसकी फिक्र, इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी सोच खत्म हो गई। एक आखिरी इस शेर के साथ बात को मैं अपने खत्म करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल ने बेहतरीन उम्मत के हालात और वाकयात को देखकर 150 साल पहले लिखा था, लेकिन सच्चा तो आज हो रहा है। बड़ा बेहतरीन शेर है, इसको ध्यान में बिठा लेके जाइए। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, बेटियां इस्मतों की लुटती रही और हम दुआ करते रहे। आओ तौहीद की तरफ। मार खाना पड़ेगा, कपड़े फड़वाना पड़ेगा। नबी से ज्यादा इज्जत नहीं है तुम्हारी मेरी, अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अहमियत नहीं है तुम्हारी मेरी इस्लाम में। मार खाना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, सोबतें बर्दाश्त करना पड़ेगा, गालियां सुनना पड़ेगा, तोहमतें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे नबी के साथ क्या क्या नहीं हुआ भाई? अभी अभी इस्लाम आया था, ऐसा 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 हुआ था, 3 साल तक शोबे में तालिब के अंदर कैद में डाल दिया गया। उनसे आला है, उनसे आला। ये सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई कुछ भी नहीं होना, बिजनेस खराब नहीं होना, मेरा बच्चे का आखिरी साल चल रहा है, बच्ची का रिश्ता नहीं होगा, नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह। कितने दखियाने से ख्यालात है मेरे और आपके तौहीद को लेकर। तौहीद कायम करना है, याद रखना, मरने से पहले कम से कम एक आदमी को 100% प्योर तौहीद परस्त बना देना। इंशाअल्लाह फिर देखना अल्लाह कामयाबी के दरवाजे खोलता है। बस दुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू। जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
حسنة في الآخرة حسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون